चलो शुरू करते हैं। उमंग आया आपको? होमवर्क सब see the first one. Rajwani Trading Company started business with cash and bank balance and building. Entry is cash account debit 1 lakh, bank account debit 2 lakhs, building account debit 2 lakhs to capital 5 lakhs. बराबर है? Purchase goods from Ram at GST. It is purchase input to Ram. Purchase 50,000, input CGST 9,000, input SGST 9,000. Sorry, 4,500 to Ram 59,000. GST is 4,500 to Ram is 59,000. Sold goods to Rakesh 70 and 18% for cash. Entry is cash account debit to sales to output. बराबर है? Cash account debit will be 80 to 600. बराबर. Cash account debit 80 to 600 to sales 70,000 to output CGST 6,300 to output SGST 6,300. मिला? Paid for repairs. Entry is repairs to cash 5,000. Placed on order is no entry. Paid for wages is wages to cash 15,000. Purchase goods from Mohan. So purchase input to Mohan. वो 10,000 था 1 लाख ही है। Purchase input to Mohan. Purchase account debit will be 1,12,000 to input will be 66,000. Sorry. Purchase account debit 1 lakh. Input will be 66,000 to Mohan 1,12,000. Purchase 1 lakh. Input 66,000 to Mohan 1,12,000. Paid for conveyance expense to cash 7,000. Purchase goods from Kishore. GST paid by the amount by check. So purchase input to bank. मिला? Purchase input to bank. Purchase में आएगा 50,000. Input 7,000 to bank 64,000. Is that clear? Purchase machinery and paid half the amount by check immediately. This was partly cash, partly credit by the way. क्योंकि आधा पैसा चेक में दिया था immediately. बाकी आधे के बारे में पार्टी का नाम ही नहीं है, तो क्या लिखेगा? क्रेडिटर अकाउंट. What you have to write? Creditor account. Is it clear? Because it was partly cash, partly credit, right? आधा ही पैसा दिया, तो बाकी आधा क्रेडिट पर है. नाम दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो क्रेडिटर अकाउंट. What you have to write? क्रेडिटर. खरीदा है तो क्रेडिटर, बेचा है तो डेटर. Is it clear? तो एंट्री होगी मशीनरी डेबिट इनपुट टू क्रेडिटर टू बैंक. Machinery account debit 50,000, input CGST 4,500, input SGST 4,500, मिला? To bank 29,500, to creditor 29,500. 29,500 bank, 29,500 creditor. Sir, conveyance expenses का account का नहीं क्या? Conveyance के लिए conveyance, traveling के लिए traveling. साथ में दिया तो traveling and conveyance. एक्सपेंस अलग से नहीं, खाली कन्वेंस एक्सपेंस भी चलेगा, कन्वेंस फीस भी चलेगा, खाली कन्वेंस भी. बोलो नहीं, साथ में ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस साथ में. विड्रू फ्रॉम बैंक 10,000 फॉर पर्सनल यूज. ड्रॉइंग्स टू बैंक. वो मशीनरी वाला क्लिक हुआ, आधा कैश आधा क्रेडिट था, बट क्रेडिट के लिए नाम नहीं दिया था, तो क्या लिखना है? क्रेडिटर. नेक्स्ट वन, परचेज गुड्स ऑफ 90,000, 10% TD, 10% CD from Rakesh, paid 1/3 by check. So partly cash, partly credit. 90,000 पे 10% is 9, net price is 81. 81 का दो टुकड़ा 1/3, 2/3, that is 27 and 54. 27 पे 10% is 2,700, net is 24,300. Entry will be purchase account debit to Rakesh to cash to discount received. Purchase check here. Purchase account debit to bank to Rakesh to discount received. Purchase में आएगा 81,000
टू राकेश में आएगा 54,000, टू बैंक में आएगा 24,300, टू डिस्काउंट रिसीव 2,700. Is this clear? Once again, purchase account debit 81, to Rakesh 54, to bank 24,300, to discount receive 2,700. Hello? Got it? Open the current account by depositing checks. Entries bank to cash 60,000. Bank to cash 60,000. बैंक का नाम दिया State Bank of India to cash. तो भी चलेगा. Cash purchases are 85,000. So purchase to cash 85,000. Goods sold on credit to Tushar. Tushar to sales 18,000. Tushar to sales 18,000. Paid salary to cash 4,000. Salary to cash 4,000. Tushar return goods. Sales return to Tushar 250. Sales return to Tushar 250. Goods taken for private use. Drawings to purchase या फिर goods withdrawn for personal use 2,000. Purchase a laptop at GST and paid by check. So it is laptop input to bank. Laptop में 40,000. Input 3,600 to bank 47,200. मिला? Goods निकाला है ना? Cash थोड़ी है. Drawings to purchase या फिर goods withdrawn for personal. Drawings to cash कब आएगा? जब वो cash निकाल के लेगा. कैश गया तो कैश, फर्नीचर लेके गया तो फर्नीचर, मशीन लेके गया तो मशीन, गुड्स लेके गया तो गुड्स. आइदर यू राइट गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज या फिर परचेज. ओके, समझा? नेक्स्ट, पेड रेंट बाय चेक. सो रेंट टू बैंक 15,000. 22nd 25th को है परचेज मोटर कार ऑफ 2 लाख फॉर कैश, 18% GST पेड बाय बैंक. सो इट्स मोटर कार इनपुट टू बैंक. मोटर कार 2 lakhs. Input 18,000 to bank 2,36,000. मिला? Goods distributed as free sample. Advertisement to purchase या फिर goods distributed as free sample. Stock नहीं, goods distributed, goods मतलब stock. Goods distributed as free sample या फिर purchase. जहां पर भी goods जा रहा है apart from purchase. Stock कब लिखना है? Unsold goods या फिर ओनर कभी लाया या कभी एक्सचेंज किया तभी स्टॉक. बाकी सब जगह पे गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स रिटर्न फॉर पर्सनल यूज, गुड्स लॉस बाय फ्लड्स, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स. सब जगह गुड्स के अलग अलग या फिर परचेज कॉमन सबका. ओके, नाउ परचेज गुड्स फ्रॉम अमित ऑन क्रेडिट. सो परचेज टू अमित 60,000. Paid by ECS cash to Amit 58,500 allowed as a discount. So it's Amit to bank to discount receipt. ECS मतलब electronic clearance system via bank. RTGS, NEFT, IMPS, ECS, debit card, credit card सबके लिए bank. ECS is electronic clearance. Online directly पैसा जाता है आपका. Okay? बैंक से ही जाएगा. Money will go from your bank. So Amit to bank to discount receipt 60,000, 58,500 and 1,500. Got it? Hello? Sold goods 5,000 at a loss of 1,000. So cash to sales how much? 4,000. Cash to sales 4,000. मिला? Sold goods of 5 at a loss of 1. 3 नहीं, तुमने 3 भेजा था शायद. तो 4 थोड़ी है 5 है. Sold goods of 5 at a loss of 1. 4 का 1 लॉस में तो 3 होएगा. 5 का 1 लॉस है तो 4. 5 का गुड्स था, 4 में बेचा. रिकॉर्ड कितने पे करोगे? 4. लॉस रिकॉर्ड होगा? प्रॉफिट रिकॉर्ड होगा? क्यों? एसेट तो होता है, गुड्स पे नहीं होता. गुड्स पे कब होता है? एंड ऑफ द ईयर. हेलो Salisha. End of the year. So it will be cash to sales 4,000 straight. Sold goods of 20,000. For 20,000 it is cash to sales 20,000. Cash to sales 20,000. All of you got that? चलो बताओ, any doubt in the homework? कोई नहीं है, सब आ गए, सब एंट्रीज आया आपको. अच्छा, टेस्ट का पैटर्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा कुछ भेज दिया मैंने ग्रुप पे. लिख के करना है. लास्ट टाइम का ध्यान रखना, जिन्होंने लिख के नहीं किया होगा वाट लगा रहेगा. राइट एंड प्रैक्टिस.
खाली गो थ्रू करके ओरली ऐसा ट्रांजैक्शन होने वाला है नहीं. राइट एंड सॉल्व एटलीस्ट 80, 90, 100 ट्रांजैक्शंस. राइट एंड सॉल्व. वो अलग है. अभी सेल्फ प्रैक्टिस इज समथिंग डिफरेंट. टुडे वी आर गोइंग टू डू समथिंग न्यू. एस में लिखना है ना ऑफिस जर्नल थोड़ी विदाउट नरेशन. अभी लिसन नाउ. हाँ बेटे कुछ नया है, ध्यान दो यार. सी वी आर गोइंग टू डू ओपनिंग एंट्री. व्हाट इज आवर ओपनिंग एंट्री? लिसन. Focus, look at the board. Something new now. मुझे एक बात बताओ, ओनर जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है तभी कुछ एसेट्स लेके आता है बिजनेस में. आपने किया पता है, कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब ओनर लेके आता है. तो समझो आप ये एंट्री करते हो, पता है कैश लेके आया ओनर, तो कैश डेबिट. बिल्डिंग लाया, बिल्डिंग डेबिट. मोटर कार लाया, मोटर कार डेबिट. फर्नीचर लाया, फर्नीचर डेबिट. याद आया? टू कैपिटल और फिर कुछ लोन लेता है वो, तो टू अजय लोन, विजय लोन. करेक्ट? हेलो. समझो कैश आया 50,000, बिल्डिंग आया 40, मोटर कार 30, फर्नीचर 20, 90,000 कैपिटल है, 50,000 का लोन है. ये एंट्री तो आपने किया. ये कब करते हो पास? विच डेट जनरली दिस एंट्री इज पास? फर्स्ट डे. स्टार्ट होता है ना, तो पहले बिजनेस में ये सब चीजें आती है. अभी इमेजिन करो बिजनेस का 1 साल हो गया, बिजनेस का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया. तो फर्स्ट ईयर जब कंप्लीट होगा, तब बिजनेस एक चीज बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज फाइनल अकाउंट्स. वो हम लोग भी करेंगे लास्ट चैप्टर में, फाइनल अकाउंट्स. तो उधर क्या करेंगे हम लोग फाइनल अकाउंट्स में? वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट किया या कितना लॉस किया. तो हाउ विल यू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ दैट बिजनेस? हाउ डू यू अराइव एट प्रॉफिट और लॉस फॉर एनी बिजनेस? इनकम माइनस एक्सपेंस. तो साल के सारे इनकम्स एक जगह पे आ जाएंगे, साल के सारे एक्सपेंस आ जाएंगे, और आपको पता चल जाएगा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस. बराबर है? अभी जब आप प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करोगे तब सारे इनकम और एक्सपेंस को एक साथ एक अकाउंट में डाल दोगे. उसको बोलते हैं पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. वहां पे डाल के प्रॉफिट लॉस ढूंढ लोगे. अब जो इनकम और एक्सपेंस होता है ना, उनका लाइफ होता है 1 साल या 1 साल से कम. तो जैसा 1 साल खत्म होगा, सारे इनकम और सारे एक्सपेंस के अकाउंट बंद हो जाएंगे. सारे इनकम और सारे एक्सपेंस के अकाउंट क्या हो जाएंगे? बंद. और प्रॉफिट लॉस ढूंढने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए यूज होंगे. और जो भी नेट रिजल्ट आया प्रॉफिट या लॉस, वो कैपिटल में एडजस्ट हो जाएगा. प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, लॉस है तो कैपिटल से सबट्रैक्ट हो जाएगा. मतलब सारे इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट इस साल के लिए क्या हो जाएंगे? बंद. नेक्स्ट ईयर न्यू, वापस एक्सपेंस, न्यू इनकम, वापस अकाउंट ओपन. That's how it works. Because expense income have a life of just 1 year. खत्म. But assets and liabilities, do they have a life of 1 year या 1 year से ज्यादा? Obviously 1 year से ज्यादा. तो वो तो बंद नहीं होने वाले, वो जाते हैं बैलेंस शीट में as assets and liabilities, and they get carried forward to the next year. So for example AC है, 1 साल में बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा? नहीं, नेक्स्ट ईयर भी आएगा. फर्नीचर नेक्स्ट ईयर भी दिखेगा, कैपिटल नेक्स्ट ईयर भी दिखेगा, लोन नेक्स्ट ईयर भी दिखेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? स्टॉक नेक्स्ट ईयर बेचना बाकी है, डेटर नेक्स्ट ईयर, क्रेडिटर नेक्स्ट ईयर पैसा लेना बाकी है, पैसा देना बाकी है. तो एसेट एंड लायबिलिटी की लाइफ 1 साल से, भले वो करंट एसेट हो. करंट एसेट भी क्या है? इस साल के बाद जो बचे हुए हैं वो करंट एसेट है. भले ही नेक्स्ट 1 साल में खत्म हो जाएंगे, बट इस साल के बाद बचे हुए उनको करंट एसेट बोलते हैं. तो करंट एसेट हो, फिक्स्ड एसेट हो, करंट लायबिलिटी हो, फिक्स्ड लायबिलिटी हो, इस साल से ज्यादा तो चलने वाले हैं. एक इस साल कंप्लीशन के बाद भी कंटिन्यू होने वाले हैं कि नहीं? होंगे ना? खत्म क्या हो जाएगा इस साल के एंड में?
एक्सपेंस एंड इनकम. बट ईयर के एंड में जो स्टॉक बच गया वो नेक्स्ट ईयर काम आएगा. ईयर के एंड में जो डेटर बच गए जिससे पैसा लेना बाकी वो नेक्स्ट ईयर देंगे. ईयर के एंड में जो क्रेडिटर बच गए वो नेक्स्ट ईयर उनको आप पे करोगे. ईयर के एंड में जो लोन है वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा. ईयर के एंड में जो कैपिटल है वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा. होगा कि नहीं होगा? होगा ना. तो 100 बात की एक बात, एक्सपेंस और इनकम की लाइफ कितनी होती है? 1 ईयर. वो समाप्त हो जाते हैं, ईयर एंड पे खत्म हो जाते हैं. सैलरी अकाउंट ईयर एंड पे खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर नया सैलरी अकाउंट पर. रेंट अकाउंट इस साल एंड में खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर न्यू रेंट अकाउंट. न्यू रेंट मतलब वो रेंट ही है, पे कर रहे हो, बट नया बनाना पड़ेगा. एक साल का खत्म हो गया, क्योंकि उनकी लाइफ उतनी है. एक उससे पिछले साल का रेंट आपको नेक्स्ट ईयर काम आने वाला नहीं है, बोलने का मतलब. पिछले साल की सैलरी नेक्स्ट ईयर काम आने वाली नहीं है. प्रीपेड हुई तो अलग बात है, बट प्रीपेड इज नॉट एन एक्सपेंस, प्रीपेड इज एन एसेट. रिमेंबर? So what is going to help you in the next year is assets and liabilities. What are going to be carried forward to the next year? Next year continue क्या होता है? Assets and liabilities. यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्या बोला मैंने? Expense और income की लाइफ 1 year के end में खत्म. तो कैरी फॉरवर्ड क्या होता है? नेक्स्ट ईयर क्या काम आता है? Assets and liabilities. करेक्ट? अभी मुझे एक बात बताओ, ईयर एंड हुआ 31 मार्च को. नेक्स्ट है 1 अप्रैल. 31 मार्च इज द ईयर एंड, 1 अप्रैल इज द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. इसके बीच में क्या बिजनेस बंद हो जाएगा? शटर वटर डाउन करके घर पे चला जाएगा, वापस नेक्स्ट डे करके वापस न्यू फ्रेश में चालू कर रहा हूं बिजनेस, ऐसा होगा? नहीं. बिजनेस तो वैसे ही चल रहा है एज यूजुअल. दुकानें वुकानें फैक्ट्रीज वैसे ही चल रही हैं. लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑन ईयर एंडिंग, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑन ईयर एंडिंग आप एक ऐसी एंट्री पास करते हो जिससे आप बता दो कि बिजनेस बंद हो गया. बुक्स, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यू पास अ क्लोजिंग एंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर. यू पास अ क्लोजिंग एंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, जहां पे आप ऐसे बताते हो कि सारा बिजनेस बुक्स में बंद हो गया और वेरी नेक्स्ट डे वो सारा बिजनेस वापस ओपन हो गया. उसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री और ओपनिंग एंट्री. वो सिर्फ थियोरेटिकल पर्पज के लिए है, प्रैक्टिकली उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है. सारे एसेट सारे लायबिलिटी वैसे ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ा, बिजनेस वैसे ही चल रहा है. खाली बुक्स में ऐसे बताते हो, प्रथा चली आ रही है कि बंद करो, क्लोजिंग एंट्री पास करो और नेक्स्ट ईयर उसको वापस क्या करो? ओपन करो, ओपनिंग एंट्री पास करके. अब क्लोजिंग और ओपनिंग एंट्री कैसे पास की जाती है? फॉर एसेट एंड लायबिलिटी आई एम शोइंग यू. तो एसेट्स आर गॉट बीच बैलेंस, मतलब एसेट जब ये बिजनेस में आते हैं शुरुआत में तो बढ़ते हैं, तो एसेट डेबिट होते हैं, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट. एसेट बढ़ा तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ी तो. ये कब होता है? ओपनिंग में होता है. ये शुरुआती एंट्री है फर्स्ट डेट की. एसेट भी बढ़ा और लायबिलिटी भी बढ़ा. तो सोचो क्लोजिंग में क्या करो? उल्टा कर दोगे. हाँ, तो लायबिलिटी कैपिटल टू एसेट, लायबिलिटी कैपिटल टू एसेट, मतलब लायबिलिटी घटा तो डेबिट, कैपिटल घटा तो डेबिट, एसेट घटा तो. इसको बोलते हैं क्या? क्लोजिंग एंट्री. क्या बोलते हैं इसको? ये कब पास होती है? ईयर एंडिंग, ईयर 31 मार्च को. एंड वेरी नेक्स्ट डे वापस ये जो एसेट लायबिलिटी पिछले दिन पे बंद हुए थे उनको आप क्या करके दिखाते? वापस ओपन करके दिखाते. ओपन करके दिखाओगे तो क्या करोगे? इसको वापस एसेट टू लायबिलिटी टू कैपिटल. इसको क्या बोलते हैं? ओपनिंग. क्यों पास की जाती है? जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी, कि भैया 31 मार्च को सारे एसेट लायबिलिटी में थे, ये खत्म हो गए, वापस 1 अप्रैल को सारे एसेट लायबिलिटी बुक्स में आ गए. बिजनेस बंद होने वाला नहीं, खाली बुक सिस्टम चली आ रही है, इसके लिए किया जाता है, बाकी कोई लेना देना नहीं. समझा? और ये एंट्री किसके लिए पास की जाएगी? ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एसेट्स और लायबिलिटी. एक्सपेंस इनकम की अलग है, क्लोजिंग ही होती है, ओपनिंग नहीं होती, क्योंकि एक्सपेंस इनकम खत्म हो जाता है. उसकी क्लोजिंग कैसे करनी है मैं बताऊंगा जब फाइनल अकाउंट्स करेंगे. फिलहाल एसेट लायबिलिटी क्लोजिंग और ओपनिंग समझ में आ रही है? क्लोज मतलब क्या? एसेट और लायबिलिटी बढ़ा कि घटा? लायबिलिटी घटा दो डेबिट, कैपिटल घटा दो डेबिट, एसेट घटा दो क्रेडिट.
और लाया वापस ओपन किया तो एसेट बढ़ा दो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, और कैपिटल बढ़ा दो। दिस इज ओपनिंग एंट्री, दिस इज क्लोजिंग एंट्री। अभी फिलहाल हम लोग करेंगे ओपनिंग एंट्री। बोलो अगर 10-15 एसेट लायबिलिटी हो तो सब छोटी चीज। वही करने वाले। देखो पेज नंबर 28 सम नंबर 34, पेज 28 सम नंबर 34। चित्तमनी एंड कंपनी दिख रहा है? देखो चित्तमनी है, चिंतामणि, चित्तमनी एंड कंपनी। दिला भैया चित्तमणि नाम नाम होगा कुछ। SIS वाला है। अकाउंटिंग इक्वेशन ना, अकाउंटिंग इक्वेशन ना अपना बाकी है, करवाऊंगा। वेरी गुड। एनालिसिस में वो एसेट्स अलग अलग, कैश, स्टॉक, बिल्डिंग, वो खाली सुप्रिया करवा, वो नहीं है एग्जाम में। वो हर साल बोलती है, वो एग्जाम में नहीं आता। स्टॉक, कैश, बैंक, फर्नीचर अलग अलग। Is it? For practice will solve that, वो भी मैं करवा दूंगा। I'm not able to listen. What? We'll do that. Don't worry. एग्जाम में अगर वो खतरनाक वाला फॉर्मेट डाला ना, we'll do that. We'll practice that format also. Now, वो हर साल बोलता है लेकिन एक साल वो डालता नहीं है। The column format of exam I'll show you. क्या है सर, क्या पूछ रहे हैं आप? मिठी भाई को नहीं हो। जीएसटी एक्सपेंस इनकम रॉन्ग है, बट वो भी कॉलेज में लिखवा है तो लिख लो, माई बाप बोलोगे मार्क्स देगा। बट जीएसटी इज नॉट एक्सपेंस नॉट इनकम, जीएसटी इज एसेट एंड लायबिलिटी, याद रखना। बट अगर कॉलेज में नड रहा है, बोल रहा है कि हाँ एक्सपेंस है, इनकम है, लिखो, मार्क्स के लिए लिखो। Drawings to cash है, कैश टू दूसरा अकाउंट है ड्रॉइंग्स एंड कैश, ड्रॉइंग्स एंड कैश बराबर।